Lahore Qalandar's High Performance Center is definitely world class. Pakistani food, the food is very good. My favorite player would be Shaheen Shah Afridi. My favorite player is Mohammad Hafiz. My favorite player will be Babar Azam. Mahbub Qalandar दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हो रैम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए तो इंटरनेशनल टीमें तो आने लगी हैं और अब वो वक्त आ गया है कि जब बाहर से क्रिकेटर्स भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नामीबिया के जो 4 प्लेयर्स आए हुए हैं लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे। इन दिनों वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और आकिब जावेद उनके साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लाहौर कलंदर से कई ऐसे प्लेयर सामने आए जिन्होंने पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की और अब बाहर तक उसकी शोहरत पहुंच चुकी है। तो आज के शो में हम बात करेंगे नामीबिया के खिलाड़ियों से कि पाकिस्तान आकर उनको कैसा महसूस हो रहा है और उनके क्या इरादे हैं। फिर आकिब जावेद और लाहौर कलंदर के जो CEO हैं आतिफ राना, उनसे भी पूछेंगे कि ये ख्याल कैसे आया और आगे के क्या इरादे हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। हाय निकोल, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? It's been good so far. The hospitality of the people here is amazing. Everyone's so friendly and welcoming towards us. So that experience has been very great for us. The food has been amazing as well. So yeah. Are you satisfied with the facilities? Yeah, look, this facilities here at Lahore Qalandar's High Performance Center is definitely world class. The gym facilities, the nets outside, the field that they train on almost every day, it's definitely world class. Compared to back home, we don't have a facility like this at all. We've got one field where we train at different nets sometimes. So yeah, that's it. It's definitely world class this side. Hi Mauritius, weather in Pakistan is different from your country. The weather is a bit more humid than back home. The first day was quite tough, but as the days kept on going, you get used to it. So yeah. You enjoy Pakistani food? Pakistani food, the food is very good. A lot of spices, but I love spice, so that wasn't really a problem. And just visited some places like in the city center, went to some restaurant. The food is also good there. Yeah. Hi Sean, tell me about the preparation of Namibia for World Cup. Well, it's we still have a lot of work to do for preparation for the World Cup. There's an upcoming series against the Lahore Qalandars and the Lions as well, which starts the 1st of September, which we're looking forward to playing quite a lot of T20 matches. So that and our prep here at the High Performance Center will help us for preparation for that T20 tournament as well. Senior cricketer David Wiese must encourage you. Well, he played a big part in by getting us to the high performance here. He had played PSL for Lahore in the previous season. So it's a nice experience to learn by him as well. He has a lot of experience playing all over the country, all over. So it's nice to experience the way he plays the game and to bring that experience into the Namibian Eagles team. It's a huge success for us as well. Hi PK, do you think in future to play in PSL? Yes, Pakistan's an amazing place, first and foremost. If given the chance to be part of either the domestic or the PSL, I'll definitely take it with both hands. Just the exposure, the level of cricket here is so high. So if given the opportunity, I don't see why anyone wouldn't take it. So it would actually be a no-brainer to take part in the PSL or even the domestic leagues here because of the level of cricket that's played locally in Pakistan. Now please tell me about your favorite Pakistani cricketer. To date, one of my favorite players is Baba, as well as Shaheen Shah Afridi. I just believe they're two world-class players that are, on top of their games in all formats of the game. My favorite player would be Shaheen Shah Afridi because I've played against him at the 2018 Under-19 World Cup, and then probably Shahid Afridi because he's also a batting all-rounder and a leg spinner like I am. My favorite player is Mohammad Hafiz. He's also an off spinner, so I look up to him, the way he bowls, the consistency in the games. So
Yeah. My favorite player will be Babar Azam. I'm looking up to him, the way he plays the game and the way he approaches innings. It's quite inspiring for me as a batsman. महबूब कलंदर दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद। नमीबियन क्रिकेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी तो ये बहुत यंग हैं, यकीनन सीख रहे होंगे और पाकिस्तान आकर उन्हें अपना खेल बेहतर करने का मौका मिलेगा। और अब हम बात करेंगे लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद और सीईओ आतिफ राना से। उनसे भी पूछेंगे कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से उन्होंने आगे क्या सोचा है और पीएसएल के बारे में भी यकीनन एक आध सवाल ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आकिब जावेद की तरफ चलते हैं। आकिब भाई, सबसे पहले ये बताइए कि नमीबिया के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान उनको मदऊ करने का ख्याल कैसे आया? 5 साल जो है ये एसोसिएट क्रिकेट में गुजारे हैं। जब मैं यूएई का हेड कोच था, ये नमीबिया से आयरलैंड, नीदरलैंड, अफगानिस्तान सबसे हमारे मैचेस होते रहते थे। वहाँ पे इनके पास फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं होती, और फैसिलिटी के अलावा एक तो आपको फैसिलिटी चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्वालिटी बॉलर्स और क्वालिटी बैटर्स, क्योंकि जब आप एक बेहतर प्लेस में खेलते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि इनके पास अभी नमीबिया से जो 4 बच्चे आए हैं, तो वो यहाँ जो हमारी क्लास ऑफ 22 है उसकी क्वालिटी देख के वो हैरान है कि वो कहते हैं कि हमारे तो पूरे मुल्क में एक बॉलर हार्डली होगा जो 140 के करीब करता होगा, तो तुम्हारे पास तो यहाँ कुछ 8-10 बॉलर ऐसे हैं और इतनी क्वालिटी के स्पिनर्स हैं। जब इस क्वालिटी के बॉलर्स को वो फेस करेंगे, क्योंकि एसोसिएट क्रिकेट जो है उसमें एक बॉलर आपको 140 का मिलेगा, बाकी सारे मीडियम पेसर्स होते हैं, स्पिनर भी उस क्वालिटी के नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इनको स्पिन खेलना है, क्योंकि यहाँ एशियन जो हमारी कंडीशंस हैं, पिचेस हैं, बॉल टर्न करता है, तो एक तो अपनी स्पिन की जो हैंडल करना स्पिनर्स को, वो यहाँ से ये ज़्यादा सीखते हैं। दूसरा, एक पेस को किस तरह से हैंडल करना है, और ऑब्वियसली जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है जितना प्रोफेशनल है, उस तरह से बहुत कम दुनिया में ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसा सिस्टम है। आईसीसी के बाद मैं समझता हूँ कि इस रीजन में आई थिंक दिस इज द बेस्ट सिस्टम। क्या लाहौर कलंदर्स के क्रिकेटर्स को भी ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड वगैरह भेजने का इरादा है? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है हम ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली टीम भेजते थे, क्योंकि देखिए ये 2 तरह की क्रिकेट जो है ना कंडीशंस आपको मिलती है। एक आपको यूरोप ले लें, इंग्लैंड ले लें, या नीदरलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो कंडीशंस हैं जहाँ बॉल थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा सा बाउंस भी ज़्यादा होता है। और दूसरी है हमारा जो एशिया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। एक प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी टेक्निक को टॉप क्लास करने के लिए इन दोनों कंडीशंस में उसको खेलना आना चाहिए। दोनों पिचेस के ऊपर खेलने का तरीका और है, चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं वो इन कंडीशंस को समझते हैं। लेकिन जब ये हमारा प्लान जो है अभी, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद अब यॉर्कशायर के साथ भी है, और फिर अभी नमीबिया भी टीम जा रही है। साउथ अफ्रीका में हम एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने की कोशिश हमारी जारी है, उसकी प्लानिंग जारी है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक प्लेयर को यंग एज में, जो कि अगर आप देखें तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो हमें तो तभी वो चीज़ें मैसर हुई जब हम पाकिस्तानी टीम में पहुँचे, या ए टीम में, या अंडर 19 टीम तक पहुँचते हैं। तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो भी बच्चा आता है उसके लिए बिफोर गेटिंग इनटू एनी नेशनल साइड, उसको ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना, एक्सपोजर, वहाँ के पिचेस, कंडीशंस, उसको उससे पहले मिल जाए। आतिफ राना साहब, ये बताइएगा कि जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो आम क्रिकेटर्स हैं अगर चाहें तो क्या वो भी यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं, अपने खेल को बेहतर बना सकते हैं, और आगे इसको किस तरह से चलाने का आपका इरादा है? देखिए, ख्वाहिश तो हमारी और कोशिश भी यही थी कि पाकिस्तान के जितने बड़े मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर हम बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो इस तरह मुतासर हुई थी। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारी पूरी ख्वाहिश है और कोशिश भी है। और रही बात कि देखिए यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो लोग आते हैं वो कॉमन मैन नहीं है, ज़्यादा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपर मिडिल क्लास से, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अपर क्लास है उसमें इस तरह का टैलेंट जो है
वो मफकूद ही होता जा रहा है। सो हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि हुकूमत के साथ, डॉक्टर अब्दुल साकिब के साथ मिलके और एक और हमारे पार्टनर हैं स्टारलेट वाले वदीम भाई के साथ मिलके, हम जो जो ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम स्कॉलरशिप पे लेके हैं। जिस तरह हमने क्लास ऑफ 2022 शुरू की इस साल और 22 बच्चे सिलेक्ट किए पूरे पाकिस्तान से, जिनके अंदर टैलेंट था, पोटेंशियल था और उनके अंदर कुछ कर कर गुजरने का जज्बा था। सो उसके ऊपर हमने फिर एक साल के लिए उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर किया। इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम इस तादाद को बढ़ाते जाएंगे। और देखिए, टैलेंट तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आप डिजिटल का ज़माना है, आपने एक वीडियो बनानी है 90 सेकंड की और हमारे कोचेस को भेज देनी है। अगर आपके अंदर शाहीन, हारिस, फ़खर, जमान खान, दिलबर जैसा टैलेंट है, या अली माजिद है, या उस्मान कादिर है, या लंबी लिस्ट है जो आप दूसरी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, सो फिर आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, फिर कलंदर आपके लिए सहारा है। तो आकिब भाई, ये हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स को, मज़ीद प्लेयर्स को दरियाफ्त करने के लिए क्या कर रहे हैं आजकल आप? देखिए, ये जो हमारी क्लास ऑफ 2022 है, इसमें 22 प्लेयर्स हैं और ये 10-12 हज़ार प्लेयर्स ट्रायल देने आए थे, उनमें से हमने सेलेक्ट किए हैं। अभी जो मैं आपको मेंशन भी किया कि जो नमीबियन प्लेयर्स आए हैं वो इस टैलेंट को देख के हैरान है कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, ये जो हमारी जो पाइपलाइन है, ये पिछले 2 साल कोविड की वजह से एक्टिविटी बंद थी तो थोड़ी स्लो हो गई। अब आप देखेंगे कि हमेशा लोग हमें कहते हैं कि हम हमेशा जो है वो बॉलर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बॉलर्स जल्दी ग्रूम हो सकते हैं, बैट्समैन को ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि कमिंग सीज़न में या एक आधे साल में मुझे बहुत उम्मीद है इस PSL में भी आपको हमारा फोकस है कि अच्छे बैट्समैन आप प्रोड्यूस करें। तो इसमें 2-3 लड़के ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये इतना उनमें पोटेंशियल है कि वो PSL और PSL के बाद आपको पाकिस्तान में खेलते हुए फ्यूचर में नजर आएंगे। आतिफ, PSL के हवाले से क्यों आजकल बिल्कुल खामोशी छाई हुई है? ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बिकॉज ऑब्वियसली PSL एक महीने का होता है, उससे पहले ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के आसपास जो है वो सारी तैयारियाँ शुरू होती हैं और फिर ड्राफ्ट में टीमें बनती हैं, उसके बाद टूर्नामेंट होता है और फिर कोई टीम जीतती है, उसके बाद फिर वही लाल पीरियड आ जाता है। ये तो लाहौर कलंदर्स हैं जो सारा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस दफ़ा हमने जब ट्रॉफ़ी जीती तो आपने देखा कि वो ट्रॉफ़ी लेके हम अपने प्लेयर्स की फैमिलीज़ के घर गए, उनका शुक्रिया अदा करने के, अपने फैंस के पास लेके गए उसको। तो 1-2-2.5 महीने की हमारी वो ट्रॉफ़ी टूर और कैंपेन रही। सो और इसी तरह हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता रहता है, कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर चलता रहता है और अब ये नमीबिया का टूर्स आ रहा है, क्लास ऑफ 2022 हमने शुरू कर दिया। सो हिस्टोरिकली भी आप देखें तो सीज़न 1 से लेके आज तक पूरा साल कलंदर्स ग्राउंड होते हैं और PSL जब 1 महीने के लिए आता है तो बाकी जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं और जो बाकी पार्टीज़ हैं, PCB है और बाकी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो फिर मैदान में आ जाते हैं। तो इसमें कोई नई मुझे तो नहीं नज़र आती बात। नमीबिया के जो प्लेयर्स हैं, इनको आपने मदऊ किया था या फिर वो खुद ही आए? असल में जब आप कोई भी ऐसा अच्छा काम करते हैं और एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो शुरू में लोग उसको उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और उसकी प्रोडक्ट सामने आती जाती है तो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ बढ़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कि आकिब भाई का ब्रेन चाइल्ड था और इन्होंने इसके ऊपर सारा काम किया और उसको स्क्रैच से लेके शुरू किया और यहाँ तक पहुँचाया, ये इस पूरे रीजन में इस तरह का दूसरा है कोई नहीं ICC के अलावा मेरे ख्याल में। सो अब जब लोगों को इस बात का पता लगा तो वो अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए। सो इसमें मेरा ख्याल है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि बाहर से क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ ट्रेन होने आ रहे हैं। और दूसरा आपने पूछा था यॉर्कशायर के हवाले से, देखिए यॉर्कशायर ने हमारे साथ पार्टनरशिप की क्योंकि वो हमारे कलंदर्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके वो काफ़ी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। सो उन्होंने कहा कि हम भी इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं यॉर्कशायर की काउंटी में। सो वो सीखने के लिए आए हमारे पास कि यार आप लोग किस तरह करते हो, हज़ारों की तादाद में बच्चों को कैसे ट्रायल ले सकते हो। सो वो हमने कॉल दी, जब ट्रायल की तो 10-12 हज़ार बच्चे आगे, उसमें से फिर हमने बच्चे सिलेक्ट किए और जब वो यहाँ पे आए उन्होंने फिजिकली हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखा डैरन गव और उनकी मैनेजमेंट ने। सो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो हम ये करते हैं कि हम यॉर्कशायर में जब ट्रायल करेंगे ना तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ
वो हम स्कॉलरशिप पे आपके पास कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजेंगे, जो यहाँ पे आके ट्रेन हो सकेंगे। तो अगेन वंस अगेन मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह की एफर्ट्स ये आकिब जावेद ने की हैं इस प्लेटफॉर्म को लेके, और जिस तरह का डिफरेंस क्रिएट किया है कि आप पहले पाकिस्तानी बाहर जाके ट्रेन होते थे, आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाहर के प्लेयर हमें अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ की फैसिलिटीज़ को देख के, और ना सिर्फ फैसिलिटीज़ बल्कि ये एक खूबसूरत बात है ना, वो ये कि आपका हर लम्हा डिज़ाइन किया हुआ है आपके, कि आपने पूरा एक पाथवे है, पूरा एक क्रिकेट का जो आप कहते हैं स्क्रैच से लेके तो ग्लोरी तक, वो हर चीज़ उसके अंदर डिफाइंड है, और उसकी ग्रेडिंग भी होती है। ये नहीं कि एक बच्चा आया और 10 बाल खेले और चला गया, उसकी बाकायदा जो उसके वीक एरियाज़ है उनके ऊपर काम होता है, और जो एरियाज़ उसके स्ट्रॉन्ग है उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो इस चीज़ को लेके सारी दुनिया बड़ी एक्साइटेड है, और वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आना चाहते हैं। नमीबियन क्रिकेटर और लाहौर कलंदर के आतिफ राना और आकिब जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी। नमीबिया के खिलाड़ी यहाँ ना सिर्फ अपना खेल बेहतर कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो सकाफ़त है उसे भी उनको देखने का मौका मिल रहा है। और इससे जो फ़ायदा है ना, जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा, वो ये है कि पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दुनिया पे जा रहा है। जब ये जाएंगे बाहर जाके बताएंगे अपने मुल्क में, या कहीं क्रिकेट खेलने जाएंगे, जैसे वर्ल्ड कप खेलने गए, अच्छा परफॉर्म किया, तो एक बात तो ज़रूर आएगी कि इन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की थी। पाकिस्तान के हवाले से भी ये एक अच्छा इक़दाम है, और उम्मीद है सिलसिला जारी रहेगा। ना सिर्फ लाहौर कलंदर बल्कि पीसीबी भी इस तरह से कुछ करेगी काम। फिर इंशाअल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।